Okay, well, so yesterday we see uh, I mean, what is servlet, and before the servlet, what was the technology that is called the common gateway interface, that is CGI, and what kind of issue the CGI is having, and servlet is a thread-based technology. So that actually we discussed. कल वाला भी थोड़ा सा रिवाइज किया Anyone saying anything? कल वाला जो क्लास थी उसमें रिवाइज किया The voice is not coming, Chand, properly, very low. So, okay, I mean, let me revise what we discussed. Okay, so servlet technology is used to create web application, resides at server side and generate a dynamic web project. Okay, so means ये क्या है, web technology है, and it is used to create the web application. तो अभी तक जो हम लोग application core Java में जो बना रहे थे, that was the standalone applications we were creating. Now we are going to create the web application. I mean application which is going to run over the internet. Okay. Okay. So CGI was the servlet technology is a robust, scalable because of Java language. Java is a robust language. But the CGI, it's a old language. I mean, this was the old technology and it is having some issue. And so what kind of issue it is having? This CGI. So through this diagram we can understand for each request a separate process is going to create. Okay, and performance is very slow. But if you will see this servlet technology, it is a thread-based technology. So in a process, multiple requests we can send. Okay, so because of that, the advantage of here is the advantage of servlet. So that we have to understand. And here we can see the diagram. We can hit the request from this. I mean, client will send through the client. We can send the request. Request will go to the server, and server will give the response here. Okay, so things will work like this. Okay, so server is having जो application हमने servlet में create किया है, which is deploying over the server, and this server is responding us. So if we talk about it's a servlet performance is better, portability, robust, secure. Then we discuss about कि कुछ terminology है इसकी, web terminology है, which we need to be familiar. For example, websites, जनरली वेबसाइट्स अगर आप देखोगे तो उसमें होते हैं कुछ स्टैटिक पेज होते हैं, कुछ होते हैं उसमें डायनेमिक पेज. ओके, so it is a collection of related web pages that may contain text, image, audio, video, so that kind of information basically a web page contain. Okay, so if I'm going to open any website, I mean any website, if I'm going to open, okay, so for example, let me open Java 4S. So you are able to see this, ये basically image है, ये जो ये these are the static, I mean already it is written. So static content वो content होते हैं जो फिक्स होते हैं.
which are written in the HTML. Okay, and dynamic page which is generated by this servlet. So servlet basically generate this dynamic page, but a static page are created in the HTML. I mean जो भी आप HTML में लिखोगे that would be the fixed and we can see those. ये भी जो लिखा हुआ है ये भी आपके static content है. So for example I am just www.gmail.com. ये जो पेज जो जनरेट हो रहा है, ये जो होम पेज जनरेट हो रहा है विच इज कॉल्ड डायनेमिक पेज, जिसकी वैल्यू आप देखोगे तो डायनेमिकली चेंज हो रही है. लेट मी क्लिक हियर, द वैल्यू इज चेंजिंग फ्रिक्वेंटली. तो ये डायनेमिक पेज है, इसमें इंफॉर्मेशन डायनेमिकली आ रही है. आई विल गेट द ईमेल. ओके, हियर डायनेमिकली email I will get, but if it is contains some static things, so those are created in the HTML. Okay, and servlet is used to generate the dynamic page. Now next is here, what this HTTP? It is a data communication protocol used to establish communication between server and client. I mean I already told, आपका जो application है which would be in the server and client will send the request to the server. Based on your request the server will respond you. ये जो communication होता है that will happen with the help of HTTP. I mean HTTP transfer hypertext transfer protocol. You can see here I hit this and let me see, here is a HTTPS. I mean earlier it was only HTTP, अभी इसमें HTTPS आ गया है, तो it means ये आपका जो URL है that is more secured. So this is the HTTP through which we will send the request. Okay, and HTTP stand for hypertext transfer protocol, which is nothing one of protocol through which client and between the client and server connection will establish. HTTP request means it is the request sent by computer to a web server that contains all sort of potential interesting information. Okay, जो हम सेंड करते हैं, इवन दो आई एम गोइंग टू क्लिक हियर, जब मैं इस इनबॉक्स पे या सेंड पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी है, यू विल सी हियर यूआरएल हैज बीन चेंज्ड. ओके, सो आइदर हाइपर लिंक से मैं रिक्वेस्ट सेंड कर सकता हूँ, डायरेक्टली यूआरएल आई कैन हिट एंड सबमिट बटन पे आई कैन क्लिक. सो सेंडिंग द रिक्वेस्ट देयर कुड बी अ मल्टीपल वे. So HTTP request. Okay, so next is a get versus post. So get versus post is nothing, two methods हैं, get and post, and it gives the difference between get and post request. Okay, so means get में अगर आप यहाँ से client से browser से request send करोगे, so it can bring very little information and limited information आप send कर सकते हो get में. and get का जो URL है which is not secured, आप get में request send करोगे, आपको यहाँ URL पे whole data you are able to see here, यहाँ पे आपका data दिख जाएगा. ओके, अगर आप post में data send कर रहे हो with the post method, तो आपका you are not able to see data on this URL, प्लस आपका data unlimited आप send कर सकते हो. and post request is a post method is a secured, more secure than this get method. Okay, we will see, इसका example हम लोग servlet में भी देखेंगे. Container क्या होता है? What is this container? It is used in Java for dynamically generating the web page. Container basically dynamic page generate करता है, but it take the help of servlet. जो हमने servlet में application बनाया है उसकी मदद से ये क्या करता है, dynamic page. Yes सर, इसका प्रैक्टिकली करके नहीं देखेंगे हम एक एक चीज? हाँ जो बिल्कुल कैसे यूज होता है, सब देखेंगे. अभी ये जो टर्मोलॉजी है ना, एटलीस्ट इसका थोड़ा फेमिलियर हो जाए. सो एवरीथिंग वी विल सी विद प्रैक्टिकल. ओके, इसमें प्रैक्टिकली है, आप है ना, थ्योरेटिकल से काम नहीं चलने वाला. ओके, सो कंटेनर क्या है यहाँ पे? कंटेनर इज काइंड ऑफ
what we can say, is kind of person who will generate the page. डायनेमिकली पेज जनरेट करेगा कौन? कंटेनर. कंटेनर कहाँ पे होता है? सर्वर के अंदर कंटेनर होता है, ठीक है. एंड लेट मी टेल यू, हमें एक टॉमकैट सर्वर की जरूरत पड़ने वाली. वी विल नीड दिस टॉमकैट सर्वर. टॉमकैट सर्वर, ओके. सो लेट मी शो यू. अभी तो कौन सा सर्वर चल रहा है? 11 है ना. सो when I joined the organization, at that time it was something 7 था शायद, ओके. अभी आप देखोगे तो इसका जो वर्जन है वो 11 है. एंड दिस इज अ लोगो. ये बेसिकली है ना, टॉम कैट. सो यहाँ जैसे ना कैट विद बिग फेस, तो दैट इज कॉल्ड टॉम कैट. एंड ये इसका लोगो है. एंड टॉम कैट सर्वर कम्स अंडर इन अपाचे फाउंडेशन, ओके. सो जो अपाचे के पास जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, वो सारे ओपन सोर्स होते हैं, ओके. These are the open source means they are not charging anything, so free of cost available, okay. So this is a logo for this Apache Tomcat, and Tomcat server we can download from here and we can install. So once you will install this Tomcat, so Tomcat will come in this way. Let me tell you. So जब आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे, so that this will install here Apache Software Foundation. ये फोल्डर होगा. मेरे इसमें 10 है, 9 है. so let me go inside this 9. so ये basically स्ट्रक्चर इसका क्रिएट हो जाता है. एंड इफ यू विल सी here, इसका अगर मैं देखूं बिन के अंदर, तो यहाँ से मैं इस टॉमकैट को स्टार्ट कर सकता हूँ और स्टॉप कर सकता हूँ. इट इज हैविंग स्टार्ट एंड शट डाउन. तो टॉमकैट स्टार्ट कर सकता हूँ एंड शट डाउन कर सकता हूँ. सो वंस इट विल स्टार्ट, लेट मी ट्राई टू स्टार्ट द टॉमकैट. इफ इट कैन रन, लेट मी टेल यू इधर, ओके. सो इसको मैं अलाउ करता हूँ. लेट मी अलाउस. ओके, वेल, सो टॉमकैट हैज स्टार्टेड. ये सर्वर मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ओके. अब नाउ लेट मी हिट दिस URL. तो ये किस पोर्ट पे चल रहा है? ये इसके लॉग्स हैं. दीज आर दी सर्वर लॉग्स, ओके, विच आर रनिंग सर्वर लॉग्स. और ये दिस इज रनिंग ऑन प्रोटोकॉल ऑफ आपका है ना 8080. सो डिफॉल्ट पोर्ट सर्वर का क्या होता है? 8080. तो http:// come on //localhost 8080. अब मैं इसको हिट करूंगा. व्हेन आई विल हिट इट, तो ये मेरे लोकल मशीन में चल रहा है. ये कोई इंटरनेट का पेज नहीं खुला हुआ है यहाँ पे. दिस इज रनिंग इन दी लोकल. सो इन दी लोकल इफ यू विल सी, तो ये बेसिकली इसका इंटरफेस है. दिस इज अ इंटरफेस. एंड इसमें हम अपनी सर्वलेट को क्या करने वाले हैं? डिप्लॉय करने वाले हैं, ओके. एंड दिस टॉमकैट विल टेक केयर टू माय सर्वलेट, कि वो उसका बर्थ टू डेथ एवरीथिंग इट इज गोइंग टू टेक केयर. उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स देगा, रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग उसके बाद सर्वलेट को डिस्ट्रॉय करेगा. एवरीथिंग इज गोइंग टू टेक केयर बाय दिस. दैट इज हैपनिंग इन अ सर्वर. एंड इनसाइड दिस सर्वर there is a container. so we were discussing कि कंटेनर क्या होता है. आपका जो सर्वलेट एप्लीकेशन है जो कहाँ पर चलेगा आपका, अभी तो ये JDK रन हो जाता था हमारा कोर जावा का कोई भी प्रोग्राम जब हम बनाते थे, तो दैट बेसिकली रन हो जाता था थ्रू दी JDK. एंड कंपाइल वी कैन डू एंड रन वी कैन रन दैट, ओके. सो लेट मी स्विच दी वर्क स्पेस हियर, ओके. बट वेब एप्लीकेशन आपका कहाँ चलने वाला है? टॉमकैट सर्वर के अंदर. सर्वर अपने आप में 2 टाइप्स के होते हैं.
web server and application server. We are going to work on application server, not the web server. But difference between web server and application server, this is quite popular interview question. And in advance, they ask what is the difference between application server and web server. Okay, so they may ask, and let me come here. So I can tell you this containers. This contain the container. तो कंटेनर मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कंटेनर कहाँ होते हैं. सो लेट मी कम ऑन लिव. और इसके अंदर एक होगा कैटेलिना. आई विल टेल यू, जार्स के फॉर्म में आता है कंटेनर. सो कैटेलिना, हियर इज अ कैटेलिना, दिस इज कॉल्ड कैटेलिना. एंड जीएसपी भी हम लोग यूज करने वाले हैं. तो जीएसपी के लिए कंटेनर यूज होता है जास्पर. ओके, सो ये आपका जास्पर है जो जार्स के फॉर्म में आता है आपका. ओके, कैटेलिना एंड जास्पर, 2 कंटेनर इज यूज्ड. So this container is going to use to generate the dynamic web page. So ये किससे जनरेट करवाएगा? हमारी सर्वलेट से. So now question comes, how we can create our सर्वलेट. सर्वलेट हम कैसे बनाएंगे? How can create our own सर्वलेट. खुद की सर्वलेट कैसे बनाएंगे हम लोग? ओके, सो यहाँ पे ये यूजर नेम पासवर्ड हमसे मांग रहा है. ओके, सो आई कैन जस्ट शो यू वन थिंग. ये सर्वर आपका 8080 पोर्ट पे चल रहा है. एंड हम यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं. सो मैनेजर ऐप, एंड हियर व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे हम लोग अपने एप्लीकेशन को ब्राउज करके अपनी वार फाइल को डिप्लॉय कर सकते हैं हियर. और यहाँ से हम टेक केयर कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को. इट इज रनिंग, और आई मीन वी कैन रीस्टार्ट, स्टार्ट, स्टॉप, रीलोड, अनडिप्लॉय, एवरीथिंग वी कैन डू फ्रॉम हियर. ओके, सो नाउ लेट मी कम हियर. और अगर मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर देता हूँ, अगर मैं इस सर्वर को यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, इफ आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस सर्वर, तो आपका फिर ये पेज नहीं चलेगा. लेट मी गो इनसाइड बिन एंड शट डाउन दिस. ओके, सो मैंने शट डाउन पर क्लिक कर दिया एंड दिस इज स्टॉप. नाउ लेट मी ट्राई टू रिफ्रेश इट. मैंने ये पेज को रिफ्रेश करूंगा, दिस विल नॉट रिस्पॉन्ड, क्योंकि सर्वर आपका बंद हो गया है. सर्वर के अंदर आपके कंटेनर होते हैं. कंटेनर आर यूज्ड टू जनरेट द वेब एप्लीकेशंस. ओके, सो नाउ क्वेश्चन कम्स कि हम I mean, this we were discussing about the container. Container basically is used to generate the web pages on server side. And web versus application, यहाँ पे ये difference है कि web server and application server में difference क्या है? What is the difference between web server and application server? So we will discuss about this question. जैसे आपका application server के example हैं JBoss, Glassface, WebLogic, WebSphere. These are the example which are given by different vendors. And Tomcat भी आपका आजकल वेब सर्वर में ही आता है. Earlier it comes in a application server में आता है. Earlier it comes with this web server. So we will see कि इन दोनों में difference क्या है. So server plays very important role. जब भी आप अपना एप्लीकेशन बनाओगे एडवांस जावा में, विच इज गोइंग टू रन ओवर द सर्वर ओनली. सर्वर में ही हम उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे एंड दैट इज गोइंग टू टेक केयर. ओके, सर्वर के अंदर बेसिकली कंटेनर्स होते हैं विच विल टेक केयर आवर एप्लीकेशन. सो हम लोग जो यहाँ पे 24/7 जैसे हम गूगल को ही एक्सेस कर रहे हैं, हमने रिक्वेस्ट किया, रिस्पॉन्स आ गया, हम यहाँ पे कुछ सर्च कर रहे हैं, तो जो बहुत सारा देखो इतना सेकंड्स में इसने कितने सारी सर्चिंग दे दिया. सो ये हु इज हेल्पिंग, मतलब ये 24/7 कौन, मतलब ये रिक्वेस्ट को आपकी रिक्वेस्ट ले रहा है, जो रिस्पॉन्स दे रहा है आपको, दैट इज गोइंग टू टेकन केयर बाय दिस सर्वर. 24/7 चल रहा होता है.
सर्वर के अंदर कंटेनर्स होते हैं विच आपके वेब एप्लीकेशन को रन कर रहे होते हैं. एज पर योर रिक्वेस्ट दे आर रिस्पॉन्डिंग यू. ओके, so server plays very important role here. Okay, difference इसमें हम लोग है ना we will discuss later. Okay, एंड कंटेंट टाइप मतलब यह है कि आप जब कंटेंट सेंड करते हो इन HTTP हेडर दैट प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन अबाउट व्हाट आर यू सेंडिंग टू द ब्राउजर को आप क्या सेंड कर रहे हो, ये इंफॉर्मेशन बेसिकली कहाँ पे होती, वो किस टाइप की होती है, कंटेंट टाइप ना इन HTTP हेडर दैट प्रोवाइड. तो इसको अगर हम देखेंगे कि हमने तो रिक्वेस्ट दिया और हमें रिस्पांस मिल गया, बट इंटरनल बहुत सारा इसमें इंफॉर्मेशन होती है जो ब्राउजर पे आती है, हेडर के साथ में होती है, राइट. लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस. ओके, इसको बोलते हैं कंटेंट टाइप. कंटेंट टाइप इज ऑल्सो नोन है, इसको माइम बोलते हैं, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, and it is a HTTP header that provides the description about what are you sending to the browser. ब्राउजर को आप क्या सेंड कर रहे हो, ये बेसिकली माइम टाइप की इंफॉर्मेशन होती है which goes with this header. So MIME is an internet standard that is used for extending the limited capability of email by allowing insertion sound, image, text, message, etc. The feature provided by MIME to the email server are single below बेसिकली है ना. तो ये कंटेंट टाइप होते हैं, इट सपोर्टेड नॉन आस्की कैरेक्टर, तो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आती है. सो वी विल डिस्कस लेटर अबाउट इट. लेट्स वी कैन कम टूवर्ड्स आवर सर्वलेट एपीआई पे सीधा हम लोग आते हैं कि सर्वलेट एपीआई होती क्या है और कितने तरीके हैं सर्वलेट क्रिएट करने के, हाउ मेनी वे टू क्रिएट दी सर्वलेट. ओके, सो सर्वलेट एपीआई है क्या, आई मीन सर्वलेट एपीआई. सो जैसे आपने कोर जावा में डिफरेंट पैकेज पढ़े थे, आप यहाँ पे क्या पढ़ोगे, यहाँ भी पैकेज हैं. ओके, जावा एक्स डॉट सर्वलेट इस नाम से पैकेज है. जैसे कोर जावा में जावा डॉट यूटिल डॉट, आई मीन यूटिल पैकेज आपने पढ़ा, लैंग पैकेज पढ़ा, आईओ पैकेज पढ़ा आपने, उसके अंदर बहुत सारे इंटरफेस एंड क्लासेस हैं. तो यहाँ भी आपके जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेजेज होंगे, बट ये कोर जावा के पार्ट नहीं है. जो आपने जेडीके इंस्टॉल किया है विच आर नॉट कमिंग इन दैट. अलग से हमें सर्वलेट को क्या करना होगा, वी हैव टू इम्पोर्ट. अलग से हम लोगों को उसकी जार को डाउनलोड करके और प्लस हमें उसके पाथ को सेट करना होगा, देन ओनली वी कैन वर्क विद सर्वलेट. ओके, सो सर्वलेट आपकी आती है जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज में, एंड आपकी सर्वलेट इसमें भी आती है जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP. ओके, सो टू पैकेज हैं जिनके अंदर ये सारा बेसिकली आता है. दिस इज एडवांस जावा एक्स डॉट सर्वलेट HTTP पैकेज. So servlet package contains many interface and classes that are used by the servlet or web container. So web container and servlet इसको use करती है किसको, interfaces and classes को. So there are not specific to any protocol. इसमें कोई ये प्रोटोकॉल से स्पेसिफिक नहीं है. लेकिन जो दूसरा पैकेज है विच इज स्पेसिफिक टू प्रोटोकॉल, HTTP लगा हुआ है इसमें. एंड इसके अंदर क्या होता है कि आपके जैसे गेट के लिए डिफरेंट होगी रिक्वेस्ट, पोस्ट के लिए डिफरेंट होगी, तो अलग अलग टाइप की जो रिक्वेस्ट है आपकी वो क्लासिफाइड की गई है, सेपरेट किया गया है बेस्ड ऑन HTTP प्रोटोकॉल. सो अगर हम इन दोनों पैकेज की बात करें कि HTTP पैकेज कंटेंस इंटरफेस क्लासेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर HTTP रिक्वेस्ट ओनली. ओके, सो अगर हम लोग जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज की बात करें तो इसके अंदर कुछ इंटरफेस हैं, जैसे सर्वलेट है, सर्वलेट रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स है, ये बहुत सारे इंटरफेस हैं इसके अंदर. वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द इंटरफेस, बट मोस्ट ऑफ इनमें से हम लोग बात करने वाले हैं. जैसे हमें सर्वलेट इंटरफेस की नीड होगी टू क्रिएट दी सर्वलेट. ओके, एंड क्लासेस आपकी कुछ ये हैं, जेनरिक सर्वलेट, सर्वलेट इनपुट स्ट्रीम, सर्वलेट आउटपुट स्ट्रीम, ये सब इसकी क्लासेस हैं. सेम ही इसमें देखोगे तो एक और पैकेज है जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP पैकेज विच कंटेन सम इंटरफेसेस. तो सारे यही इंटरफेस है इसके अंदर
बट इसमें क्या है कि इसमें HTTP लगा हुआ है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पांस, HTTP सेशन, HTTP सेशन लिसनर, HTTP सेशन एट्रीब्यूट लिसनर। तो ये सब ये इसके क्या है, इंटरफेसेस हैं। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है HTTP सर्वलेट कुकीज, बहुत सारी क्लासेस यहाँ पे दी हुई हैं। क्वेश्चन ये आता है हम खुद की सर्वलेट बनाने के कितने तरीके हैं। फर्स्ट हमें समझना होगा व्हाई वी आर गोइंग टू क्रिएट सर्वलेट, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट सर्वलेट। सो सर्वलेट इज यूज्ड टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। थ्रू दी सर्वलेट हम लोग बनाने वाले हैं ऐसा एप्लीकेशन जो इंटरनेट पे चलेगा, दैट विल रन ओवर दी वेब, जो सर्वर में डिप्लॉय होगा, सर्वर बेसिकली उसको रन करेगा। सो वी शुड नो सर्वलेट होती क्या है एंड कितने तरीके हैं कि हम अपनी सर्वलेट बना सकते हैं and we can use that. So that is our target to understand it. So the next topic is servlet interface. सबसे पहले जैसे आप लोगों ने थ्रेड पढ़ा था कि थ्रेड बनाने के कितने तरीके हैं, क्लास को एक्सटेंड कर लो, रनेबल को इम्प्लीमेंट करके थ्रेड बना सकते हो। ऐसे यहाँ पे सर्वलेट बनाने के कितने तरीके, हाउ मेनी वे जावा पीपल हैज गिवन टू क्रिएट दी सर्वलेट, कितने तरीके हैं जो जावा पीपल लोगों ने दिया है कि जिनसे आप सर्वलेट बना सकते हो। So let me tell you with the help of paint so you can understand कि एक सबसे पहले Java people has given one interface is called servlet. So ये servlet क्या है, इंटरफेस है। आई एम होपिंग कि ये जो इंटरफेस वर्ड है ये आपको सरप्राइज नहीं कर रहा है। एवरीवन इज फैमिलियर विद इंटरफेस। कोर जावा में जो इंटरफेस पढ़ा है सभी लोग फैमिलियर हैं इससे गाइस? Yes, sir. Yes, sir. सर इंटरफेस क्या होता है आपका, आई मीन वेयर वी कैन 1.7 तक ओनली हम मेथड्स को डिक्लेयर कर सकते थे, राइट? 1.8 से हम 2 मेथड्स की बॉडी दे सकते हैं। इंटरफेस का हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, राइट? कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं कर सकते, राइट? सम वेरिएबल्स वी कैन डिक्लेयर, वो भी कांस्टेंट फाइनल्स रहेंगे आपके उसके अंदर, राइट? 2 मेथड्स की बॉडी हम 1.8 से दे सकते हैं, बट ये अभी भी सर्वलेट के अंदर मुझे इसमें किसी मेथड की बॉडी नहीं है, एम्प्टी मिलेगी आपको। ओके, तो एक तो इन्होंने दिया है सर्वलेट इंटरफेस, जिसको हम इम्प्लीमेंट करके अपनी खुद की ओन सर्वलेट बना सकते हैं। इसको हम इम्प्लीमेंट करके वी कैन क्रिएट आवर ओन सर्वलेट। कैसे, आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मैंने लिखा माय सर्वलेट implements, my सर्वलेट implements सर्वलेट। तो सर्वलेट को इम्प्लीमेंट्स करके हम लोग खुद की सर्वलेट बना सकते हैं। बट इसमें क्या है, इसमें 5 मेथड्स हैं, इसके अंदर 5 मेथड्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 मेथड्स है इसके अंदर। अब इंटरफेस के अंदर कोई अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उनकी बॉडी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है गाइस? Whose responsibility to give the body? Tell me. हमारी जो क्लास उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। सो अभी सर्वलेट को कौन इम्प्लीमेंट कर रही है? माय सर्वलेट। ओके, तो यहाँ पे ऑल 5 मेथड्स की बॉडी हमें देनी होगी। वी हैव टू गिव ऑल 5 मेथड्स बॉडी। ऑल 5 मेथड्स बॉडी वी हैव टू गिव हियर। और हमें एक मेथड की जरूरत होगी, दैट इज कॉल्ड दी सर्विस मेथड। एक्चुअल में जो हमें नीड होगी ना, वो मेथड्स आपका कौन सा है? सर्विस मेथड है। सो ना चाहते हुए भी हमें 5 मेथड की बॉडी देनी पड़ेगी। इनकी हमें नीड नहीं है, वी डू नॉट रिक्वायर्ड दिस, इसकी जरूरत नहीं है। बट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दिस इंटरफेस का जो कोर नेचर है कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, इम्प्लीमेंटेशन क्लास को उसकी बॉडी देनी होगी। इफ इम्प्लीमेंटेशन क्लास डू नॉट वांट टू गिव द बॉडी, वी हैव टू डिक्लेयर दैट क्लास एज एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा। तो ये तो एक तरीका है कि आप सर्वलेट को इम्प्लीमेंट करके सर्वलेट बना लो, दिस इज वन वे। ओके, देन द अनदर वे, इन्होंने दूसरा तरीका दिया हुआ है यहाँ पे, दे हैव गिवन द अनदर वे, दैट इज कॉल्ड हियर, कि आप यहाँ पे एक इन्होंने दिया हुआ है जेनेरिक सर्वलेट। दे हैव गिवन द जेनेरिक सर्वलेट। ओके,
सो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है जेनेरिक सर्वलेट, जेनेरिक ओके। जेनेरिक सर्वलेट बेसिकली क्या है, यहाँ पे एसी लिख रहा हूं, इसका मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। आप इस क्लास को एक्सटेंड करके भी आप अपनी क्लास बना सकते हो, अपनी खुद की सर्वलेट बना सकते हो। यू कैन क्रिएट हियर, इसको एक्सटेंड करके आप यहाँ पे बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेम ही ले रहा हूँ, माय सर्वलेट एक्सटेंड्स जेनेरिक, जेनेरिक को एक्सटेंड करके आप बना सकते हो। सो अगर यहाँ पे पहले से ही सर्वलेट को इम्प्लीमेंट करके बना सकते हैं तो फिर जेनेरिक क्यों दिया इन्होंने? जेनेरिक में इन्होंने क्या किया, जावा पीपल व्हाट दे डिड, दे रियलाइज, उनको ये रियलाइज हो गया कि न चाहते हुए भी फोर्सफुली डेवलपर्स को क्या करना पड़ रहा है, ऑल 5 मेथड्स की बॉडी देनी पड़ रही, ऑल 5 मेथड्स की बॉडी देनी पड़ रही। इन्होंने क्या किया, सारे इन्होंने क्या किया, एक्सटेंड किया। तो अब बताइए बॉडी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जेनेरिक सर्वलेट की। तो इसमें क्या किया, 5 मेथड्स में से 4 मेथड की इन्होंने एम्प्टी बॉडी दे दी, 4 मेथड्स की क्या दे दी, एम्प्टी बॉडी दे दी, और एक मेथड को एब्स्ट्रैक्ट छोड़ दिया। आप बताइए किसी क्लास के अंदर अगर एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट छोड़ रहे हैं हम, उस क्लास को क्या बनाना पड़ेगा, कोर जावा का कॉन्सेप्ट है, उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा। वी हैव टू क्रिएट दिस क्लास एज एब्स्ट्रैक्ट, तो इसलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाया। अब हमारी क्लास अगर इसको एक्सटेंड करेगी तो आप बताइए ये क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, 5 मेथड्स की बॉडी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड छोड़ा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओनली दैट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उसका करेक्ट जो सर्विस मेथड है इसके अंदर केवल उसकी बॉडी देंगे हम लोग। यहाँ पे और की बॉडी तो इसने एम्प्टी बॉडी दे दी है, केवल हम यस सर इसका मतलब इम्प्लीमेंट समझ नहीं आ रहा, इसका कैसे इम्प्लीमेंट होगा? अभी आएंगे, बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट पे आएंगे। बट क्या आपको कोर जावा का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि इंटरफेस एक्चुअल में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? अभी उस पे आते हैं, बहुत जल्द हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। बट वी आर वर्शिपिंग द नॉलेज ऑफ कोर जावा कि आप ये यहाँ पे ये देखो कि इट्स ओके कि सर्वलेट बनाने के कितने तरीके हैं, हाउ मेनी वे टू क्रिएट दी सर्वलेट, एटलीस्ट वो पता होगा। सर्वलेट क्यों बना रहे हैं? वेरी गुड, सर्वलेट बना रहे हैं वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, ऐसा एप्लीकेशन बनाने के लिए जो इंटरनेट पे चलेगा। ये जो आपके सामने जावा टी पॉइंट खुला हुआ है, ये किधर चल रहा है, लोकल चल रहा है या इंटरनेट पे चल रहा है? इंटरनेट पे चल रहा है सर, बिकॉज ऑफ सर्वलेट। तो हम अभी तक आप अपने एप्लीकेशन लोकल पे चला रहे हो, वो भी इक्लिप्स के अंदर एप्लीकेशन बनाया, राइट क्लिक किया, रन किया, कंसोल पे आउटपुट एंजॉय किया, दैट्स इट। बट हम लोग बन क्या रहे हैं, वी आर बिकमिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपर ही हम लोग बन रहे हैं। हम वो डेवलप करना चाहते हैं एप्लीकेशन जो इंटरनेट पर चलेंगे, राइट? सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कि यूज केस क्या है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कितने तरीके हैं जिनके थ्रू आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, मतलब सर्वलेट बना सकते हो। तो एक तरीका है कि आप सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके सर्वलेट बना सकते हो। नहीं सर, जैसे हमने एक लिस्ट में कोई सॉफ्टवेयर बनाया पहले, ठीक है, कुछ भी बनाया सपोज, ठीक है, लूप लगा के कुछ भी बना दिया, तो उसको कैसे हम उस पे ले जाएंगे, गूगल में कैसे ले जाएंगे? आप गूगल में नहीं, इंटरनेट पर कैसे लेके जाओगे, वो कैसे लेके जाओगे, वो इंटरनेट पर चले वो एप्लीकेशन। तो कोर जावा के अंदर ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, फॉरगेट अबाउट इट। कोर जावा के एप्लीकेशन से आप वेब नहीं बना सकते, ओके? वेब के लिए आपको जरूरत इसी की होने वाली है, किसकी? सर्वलेट। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। सो क्वेश्चन, तो सर फिर मतलब इसमें लेने के लिए, वेब पे लेने के लिए एक यही है सर्वलेट ही है कि इसके अलावा और भी है? जावा के अंदर सर्वलेट ही है जिसके थ्रू वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं।
अदर लैंग्वेज की कहानी हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, जैसे PHP है, .NET है, सम अदर लैंग्वेज, पाइथन है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। बट अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जावा के अंदर वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए इन्होंने एक दिया है सर्वलेट, दूसरा एक दिया है JSP। JSP की अभी बात हम कर नहीं रहे, बट वन वे इज गिवन, दैट इज कॉल्ड सर्वलेट। अब क्वेश्चन आता है कि सर्वलेट, ठीक है, हमें समझ पड़ गया कि सर्वलेट से हम वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, फिर सर्वलेट कैसे बनाएं, हाउ वी कैन क्रिएट दी सर्वलेट, सर्वलेट के अंदर हम लोग एप्लीकेशन कैसे बनाएं, हाउ वी कैन क्रिएट। तो उसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि सर्वलेट, खुद की सर्वलेट बनाने के लिए या वेब एप्लीकेशन सर बनाने के लिए। यस सर जैसे हमने एक लिस्ट में कोई भी एक प्रोग्राम बनाया, बस सर्वलेट क्या करता है, हमें एक प्लेटफॉर्म दे देता है उसको उसमें इंटरनेट पे लाने के लिए। नहीं बेसिकली नहीं नहीं, यही प्लेटफॉर्म नहीं देता, प्लेटफॉर्म नहीं देता, उसी को समझ रहे हैं यहाँ पे। वो कोई ऐसा नहीं कि आपने कोर जावा का एप्लीकेशन, सर्वलेट कोई प्लेटफॉर्म है वहां पेस्ट कर दिया और वो चला देगा उसको, ऐसा नहीं है। हमें हमें सर्वलेट का यूज करके खुद की सर्वलेट बनानी होगी, ओके। और उस क्लास के अंदर ये कैपेबिलिटी होगी कि आप वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट को हैंडल कर ले। हम जो कोर जावा में एप्लीकेशन बना रहे हैं उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको हम रिक्वेस्ट कर दें और वो हमें रिस्पॉन्स कर दे, ये कैपेबिलिटी उसके अंदर नहीं है। बट जो सर्वलेट में हम लोग बनाएंगे एप्लीकेशन, उसके अंदर ये तो सर कैपेबिलिटी होगी कि आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको वो रिस्पॉन्स भी देगा। हाँ जी, तो सर ये जो सर्वलेट है हमारा, ये इक्लिप्स की तरह ही है जिसमें हम प्रोग्राम बना सकते हैं कम कि ऑन। पहले से इक्लिप्स, नो बनाना नो नो पड़े? नो 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 नो, बिल्कुल नहीं है। इक्लिप्स एक आईडी है, जो प्लेटफॉर्म जिस पे प्रोग्राम बना रहे हो। ठीक है सर। इक्लिप्स या आईडी जैसे नोटपैड है आपका, जी सर। ये तो एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां प्रोग्राम टाइप कर रहे हो, दैट्स इट। टाइप कर रहे हो, आप रन कर रहे हो उसको। तो नोटपैड में ब्लैक एंड व्हाइट है, राइट। यस सर। तो ब्लैक एंड व्हाइट तो वैसे ही पसंद नहीं है हम लोगों को, राइट। हमें थोड़ा करेक्ट। कलरिंग चाहिए, जिसमें फीचर जैसे आसानी से रन कर पाए। कि जब नोटपैड पर रन करते, कमांड प्रॉम्प्ट पे आप जाके उसके पाथ में जाके वो मैनुअली एवरीथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट, राइट। कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करो, दैट वाज वेरी टीडियस, ओके, कि आप यहाँ पे रन करो। तो इससे इन्होंने क्या दे दिया, इक्लिप्स एक प्लेटफॉर्म दे दिया, ओके। सर्वलेट क्या चीज है ना। सर्वलेट मतलब क्या हो गया, एक ऑलरेडी बना हुआ इंटरफेस है जो जावा पीपल हैज गिवन, एंड उन्होंने कुछ क्लासेस भी दी हैं। इनको इम्प्लीमेंट और एक्सटेंड करके आप अपनी खुद की ऐसी क्लास बना सकते हो। यू कैन क्रिएट योर क्लास जिसके अंदर कैपेबिलिटीज होगी कि वो आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देगी। समझ आया तो आपको ये? सर्वलेट को सर हम देख सकते हैं वैसे? हम खुद का बनाएंगे ही, अभी देख भी सकते हैं, काम भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, ओके। यही तो सामने, इसी को तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जस्ट की पेशेंस। इसको समझो पहले कि सर्वलेट जो इन्होंने दिया है, दैट इज कॉल्ड दी सर्व। पहला इन्होंने इंटरफेस दिया है जिसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, ओके। दूसरा इन्होंने दिया हुआ है जेनेरिक सर्वलेट जिसको एक्सटेंड करोगे, ओके। सेकंड दिया हुआ है जेनेरिक सर्वलेट जिसको एक्सटेंड करोगे। तीसरा दिया हुआ है HTTP सर्वलेट। द थर्ड वे इज गिवन HTTP सर्वलेट, ओके। HTTP सर्वलेट, ये भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ओके। ऐसे ही लिख रहा हूँ इसको। सर yes? सर फंक्शनल इंटरफेस में अपन बोल सकते हैं कि ये सर्वलेट एग्जांपल सर्वलेट नहीं बोल सकते, क्योंकि इनमें कौन सा हमें दिख रहा है जो फंक्शनल इंटरफेस है। देखो, इसके अंदर 5 मेथड हैं, जो ऑल 5 मेथड एब्स्ट्रैक्ट हैं, यस राइट। और फंक्शनल इंटरफेस की स्टोरी क्या होती है, ये इंटरफेस का एग्जांपल दे सकते हो, ओके। इट इज एग्जांपल ऑफ इंटरफेस, ओके। नॉर्मल फंक्शनल का नहीं होगा क्योंकि इसमें 5 एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं। अब ये तो फंक्शनल रहा ही नहीं, फंक्शनल के अंदर तो एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, राइट। राइट। आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एग्जांपल दे सकते हो। जेनेरिक सर्वलेट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, समथिंग यू नो, समथिंग यू डोंट नो,
मतलब 4 मेथड्स की बॉडी दे दी है, एक मेथड की बॉडी नहीं दी है, इज नथिंग कॉल्ड जेनरिक सर्वलेट। लेटर उन्होंने एक और दिया HTTP सर्वलेट। जावा पीपल हैज गिवन दिस HTTP सर्वलेट, इन्होंने HTTP सर्वलेट दी यहाँ पे, दे हैव गिवन दिस HTTP सर्वलेट। HTTP सर्वलेट को अगर एक्सटेंड करके आप क्लास कर रहे हो तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, 2XXX7 मेथड हैं। मतलब आपके ऐसे मेथड्स हैं जो HTTP बेस्ड हैं, गेट, डू गेट, डू पोस्ट, डू पुट, डू डिलीट, ऐसे आपके 2XXX7 मेथड्स हैं। मतलब आप इंटरनेट से, ब्राउजर से, क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो वो किस टाइप की रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो आप, उसमें वो टाइप मतलब HTTP टाइप भी कर सकते हो, गेट है कि पोस्ट है, पुट है, डिलीट है। इस टर्मिनोलॉजी के हम लोग बहुत जल्दी फेमिलियर हो जाएंगे। ओके, तो सर्वलेट बनाने के कितने तरीके, हाउ मेनी वे टू क्रिएट द सर्वलेट? 3 तरीके हैं। काजोल, हाँ, 3 तरीके, टोटल कितने तरीके हो गए? 3 वे। 3 वे। 3 सर, ठीक है सर। सर्वलेट को इम्प्लीमेंट करो। सर एक क्वेश्चन हाँ है, सॉरी हाँ 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 हाँ, कोई बात सर। ये नहीं, जो आपने लिखा है सर्वलेट I1234, ये समझ ये नहीं तो आया सर ये मुझे। 1 2 3 4 कुछ नहीं, इसमें 5 मेथड्स हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो फिर मुझे यहाँ पे मेथड के नाम लिखने पड़ेंगे ऐसे। एक सर्विस मेथड है, डिस्ट्रॉय मेथड है, ये हम आगे अभी एक्चुअल प्रैक्टिकल में देखेंगे कि इसके अंदर 5 मेथड्स हैं। मैं इसको ऐसे लिखूं यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेथड्स हैं इसके अंदर। ये क्या है, मेथड्स हैं इसके अंदर। ऐसे ही इसमें भी 5 मेथड्स हैं, इसके अंदर भी 5 मेथड हैं, बट इसमें 4 की, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये सब मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट हैं। जेनरिक के अंदर 4 की तो इन्होंने एम्प्टी बॉडी दी है, एक मेथड खाली एब्स्ट्रैक्ट छोड़ दिया इसके अंदर। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन समझो आप, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि अगर आप सर्वलेट को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आपको 5 मेथड्स की बॉडी देनी होगी। आप इस जेनरिक को एक्सटेंड कर रहे हो, 1 मेथड की बॉडी देनी होगी। एंड HTTP सर्वलेट को कर रहे हो तो आप डू गेट, डू पोस्ट मेथड्स की बॉडी दोगे आप, इसके खुद के मेथड्स हैं कुछ, उनकी बॉडी आप दोगे यहाँ पर। ओके, सो लेट्स वी कैन सी, इसका अब एग्जाम्पल हम समझने का ट्राई करते हैं। ओके, सो सर्वलेट क्या है, सर्वलेट इंटरफेस प्रोवाइड कॉमन आई मीन व्हाट दिस कॉमन बिहेवियर टू, सिंपल में, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो सर्वलेट की क्या डेफिनेशन होगी? सर्वलेट इज अ इंटरफेस and which is used to create the generate dynamic web page। तो सर्वलेट क्या है कि इंटरफेस है जिसको इम्प्लीमेंट करके वी कैन डेवलप आवर ओन सर्वलेट, खुद की सर्वलेट बना सकते हैं, और उस सर्वलेट की कैपेबिलिटी होगी। और इसके 3 टाइप्स होते हैं ना सर? 3 टाइप्स नहीं है, हाँ मतलब 3 तरीके हैं जिनके थ्रू आप ऐसी क्लास बना सकते हो, उस क्लास के अंदर कैपेबिलिटी होगी कि वो वेब पेज जनरेट करेगी, डायनेमिक वेब पेज जनरेट करेगी। ओके, आपकी रिक्वेस्ट का रिस्पांस करेगी। तो बट सर जो हमारा इक्लिप्स था, इक्लिप्स में सिर्फ हम एक सिंपल तरीका था जिससे हम क्लास का नाम दे सकते थे सर। बट जो हमारा सर्वलेट है इसमें 3 वे है, 3 तरीके से हम क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो इसका लिंक आप इक्लिप्स से जो कर रहे हो ना, इक्लिप्स तो यहाँ भी यूज करेंगे हम लोग, इक्लिप्स तो यहाँ भी यूज करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ भी इक्लिप्स यूज करेंगे। इक्लिप्स एक प्लेटफॉर्म हो गया, बट जो पहले ऐसा बोलो कि वो कोर जावा थी, राइट, J2SE थी। J2SE के अंदर जो क्लास बना रहे थे उसके अंदर उस क्लास की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो डायनेमिक पेज जनरेट कर दे और आपके रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दे दे। अब जो हम लोग J2EE है या एडवांस जावा के अंदर जो क्लास बनाएंगे उसके अंदर कैपेबिलिटीज होगी
कि वो रिक्वेस्ट हम सेंड करेंगे वो हमें रिस्पॉन्स देगी। आप समझ गए? इक्लिप्स कोर के लिए भी यूज हो रहा है, इक्लिप्स एडवांस के लिए भी हो रहा है। अभी हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं, वी विल सी इट। ओके, ऐसा नहीं इसके लिए कुछ अलग आईडी आ जाएगी तो उसको यूज करेंगे एंड इक्लिप्स इज डेडिकेटेड फॉर कोर जावा ओनली, ऐसा नहीं। ठीक है, तो कोर और एडवांस दो टेक्नोलॉजी आपको समझनी होंगी यहाँ पे, कोर एंड एडवांस यहाँ पे। सर यस, तो जैसे हम HTML और CSS का यूज करके कोई वेबसाइट का स्ट्रक्चर देते हैं, उसके बाद सर सर्वलेट का कब काम आता है? हाँ, गुड क्वेश्चन। सो लेट मी टेल यू, पहले हम यहाँ पे ये देख लें कि अभी हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एक टेक्नोलॉजी थी कोर जावा। स्क्रीन सभी को विजुअल है मेरी? यस सर। कोर जावा, ठीक है, जिसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। कोर जावा कोई ऑफिशियल नाम नहीं है, इट इज नॉट ऑफिशियल नेम। ये आईटी इंडस्ट्री वालों ने क्रिएट कर लिया कोर जावा। एक्चुअल जो नाम इसका दिया था J2SE, J2SE दिया था। ओके, अब J2SE बोल दो या JSE बोल दो या फिर JSE, ऐसे बोल सकते हो। एडवांस जावा ये भी कोई ऑफिशियल नाम नहीं है, ये भी आईटी पीपल हैज क्रिएटेड। यहाँ पे है J2EE या JEE। ओके, सो जो कोर में आप क्लास बना रहे हो इसमें स्टैंड अलोन बना रहे हो, एक ही क्लास होगी। ओके, जरूरी नहीं एक क्लास होगी, एक से ज्यादा भी हो सकती है, बट कोई भी क्लास आपकी डायनेमिक पेज जनरेट नहीं कर सकती। कैन नॉट जनरेट डायनेमिक पेज, कैन नॉट रिस्पॉन्स यू अकॉर्डिंग टू योर रिक्वेस्ट। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे जो भी मैं डोमेन हिट कर रहा हूँ, मैंने जीमेल ही ओपन किया, आई ओपन दिस जीमेल, मैंने सेंड पे क्लिक किया, है ना, मैंने ट्रेस पे क्लिक किया, ट्रेस पे मैंने रिक्वेस्ट की, ये मुझे इसने रिस्पॉन्स में पेज डायनेमिक पेज जनरेट करके दे दिया, जिसमें जितने भी ड्राफ्ट में मेरे जो ईमेल्स होंगी वो सारी मुझे दिख रही है। इनबॉक्स पे क्लिक करूंगा तो डायनेमिकली इसने इनबॉक्स वाला पेज दे दिया, जिसमें मेरी जितनी भी मेल्स हैं सारी मुझे दिखेंगी, वो भी पेजिग्नेशन में। ओके, एक बार में समथिंग 50 मेल दिखा रहा है, नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो अनदर 50 दिखाएगा। ये डायनेमिक आपका आ रहा है, राइट? बट कोर जावा के अंदर इट इज नॉट हैविंग द कैपेबिलिटी टू जनरेट डायनेमिक पेज। ओके, इक्लिप्स एक आईडी है जिस जो प्लेटफॉर्म दे रही जहां आप प्रोग्राम टाइप कर रहे हो। ओके, नोटपैड पे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीजें, इक्लिप्स ने उसको इजी कर दिया, दैट्स इट। एडवांस का भी एप्लीकेशन हम इक्लिप्स को, इक्लिप्स जैसी बहुत सारी आईडी है मार्केट में। ओके, हाँ, अब क्वेश्चन क्या था, एक बार रिपीट करो। क्या बोलते प्रदीप? सर क्वेश्चन क्या था? HTML और CSS का यूज करके हम लोग वेबसाइट का स्ट्रक्चर दे देते हैं, उसके हाँ, बाद इसको सर्वलेट हम का देखते हैं। काम आता है। इसके लिए कल हमने जो एप्लीकेशन एक डायग्राम बनाया था, यू आर एबल टू सी दिस डायग्राम? दिख रहा है अभी यस सर, आपको? ये डायग्राम दिख रहा है, राइट? यस सर। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो HTML में मैंने ये बहुत सारे इसमें टायर एप्लीकेशन बनाया, आई मीन नो इट्स अ, सो जो HTML CSS में जो आप बना रहे हो उससे आप UI पेज बना रहे हो, ये वाला पेज बना रहे हो, राइट? यस सर। एंड जावा का यूज करेंगे, जो सर्वलेट बनाएंगे वो यहाँ पर बनाएंगे। हियर सर्वलेट में एक्चुअल में हम बना रहे हैं फ्रंट कंट्रोलर, मतलब आप जो HTML CSS से रिक्वेस्ट करोगे सर्वलेट उसको हैंडल करेगा, आपकी रिक्वेस्ट को समझ के वो आपको यहाँ से रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, तो UI पेज से आप रिक्वेस्ट करोगे, सर्वलेट आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, इसलिए इसको बोला जाता है फ्रंट कंट्रोलर। आप किसी कंपनी में जाओ, सबसे पहले हमें कौन मिलता है, कौन हैंडल करता है? गार्ड होता है ना कंपनी में, राइट? या आप जैसे किसी भी कंपनी में आप जाओगे तो सबसे पहले आपको HR हैंडल करेगा,
ओके, तो एचआर क्या काम कर रहा है? फ्रंट कंट्रोलर का काम कर रहा है। आपकी रिक्वेस्ट आई, उन्होंने देखा यू आर .NET पीपल, PHP पीपल और जावा पीपल। आप सपोज इंटरव्यू देने गए हो, तो एचआर आपका प्रोफाइल देखेगा, यू आर जावा पीपल, तो वो जावा के पैनल पे आपको सेंड कर देगा कि ही इज गोइंग टू टेक केयर, ही एंड सी इज गोइंग टू टेक कर योर इंटरव्यू। तो आपको सबसे पहले हैंडल किसने किया? एचआर ने। एचआर क्या हो गया यहाँ पे? सर्वलेट की तरह काम कर रहा है। तो जब आप यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो यूआई से, तो उस रिक्वेस्ट को हैंडल कौन कर रहा है? फ्रंट कंट्रोलर। फ्रंट कंट्रोलर हम किस में बनाएंगे? सर्वलेट के अंदर। और सर्वलेट को बनाने के कितने तरीके देखे अभी हमने? 3 वे। ओके, 3 वे देखे हमने यहाँ पे कि या तो इम्प्लीमेंट करके सर्वलेट बनाएंगे, जेनेरिक को एक्सटेंड करके बनाएंगे, या HTTP को एक्सटेंड करके बनाएंगे। तो 3 वे से हम बनाएंगे, जिसको हम बोलेंगे फ्रंट कंट्रोलर। ओके, जो आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। फिर आप इसको सर्विस लेयर पे सेंड कर सकते हो। आपने रिक्वेस्ट किया यहाँ पे कि मुझे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए, सो वो रिक्वेस्ट को यहाँ लेके जाएगा सर्विस पे, सर्विस से फिर यहाँ लेके जाएगा, एंड यहाँ से वो 10 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड निकालेगा। ओके, कलेक्शन में पुट करेगा, और कलेक्शन में पुट करके आपको वो रिटर्न कर देगा रिस्पॉन्स, और आप यूआई पे उसको दिखा रहे होगे कि 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। जैसे कि आप इसमें देखो मेरे केस में कि मैंने जब इनबॉक्स पे क्लिक किया, व्हेन आई क्लिक ऑन दिस इनबॉक्स, ये मुझे एक बार में कितनी ईमेल से दिखा रहा है? 1 to 50 ईमेल्स। तो इसने ऑल सारी ईमेल लेके आ गया है 29,855, बट एक बार में शो कर रहा है 50, जिसको बोलते हैं पेजिग्नेशन। ओके, तो ये जो रिस्पॉन्स है, तो इसके इंटरनल ये कुछ चला हुआ। जब शुरू में ये जो फ्रंट है, जब मैं यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सेंट, वो समझ जाएगा इधर, ये समझेगा कि कितना ये रिक्वेस्ट मांग रहा है हमसे। ये सेंट, इसके इनबॉक्स के सेंट में जो भी मेल्स पड़ी हैं, मुझे सारी शो करनी है। तो ये कहाँ जाएगा? सर्विस पे। फिर किस पे जाएगा? डाव पर। डाव से डेटाबेस में हिट करेगा, सारी सेंट ईमेल लेके आएगा और आपको यहाँ पे शो कर देगा। गॉट इट? ये लेयर भी जावा में बनने वाली है, ये भी जावा में बनने वाली, ये भी जावा में बनने वाली। ये डेटाबेस MySQL में, सॉरी SQL लैंग्वेज में बेसिकली होगा। सर ये हमारा कंट्रोल है, कंट्रोलर, सर्विस और डाउ, इन तीनों में कोडिंग होती है कि सिर्फ कंट्रोलर में कोडिंग होती है? कोडिंग तीनों में होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। ओके, तो एडवांस जो आपका बनने वाला है वो इसमें बनेगा। बाकी ये कोर जावा के इसमें कॉन्सेप्ट होंगे, कोर के कॉन्सेप्ट होंगे इसके अंदर। और यहाँ कॉन्सेप्ट होगा JDBC का, यहाँ आपकी JDBC की कोडिंग होगी। आजकल काफी सारे फ्रेमवर्क आ गए हैं। यहाँ सर्वलेट की कोडिंग होगी। सर बैकएंड वाले कितने? यहाँ आपकी कोर जावा होगी, यहाँ पे है ना कोर। बैकएंड में आपका डेटाबेस होगा। डेटाबेस जिसमें आपका डेटाबेस आपका कौन सा हो सकता है? MySQL भी हो सकता है, Oracle भी हो सकता है, PostgreSQL भी हो सकता है। तो इसमें टेबल्स वगैरह क्रिएट होते हैं। तो वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ। तक फ्रंट एंड जो HTML होता है सर इसी में आ जाता है, डाटाबेस में? HTML नहीं, HTML इधर है, इधर आओ। यहाँ पे ये UI जो सबसे पहले आपका ये HTML है, यहाँ पे HTML है। दिस इज कॉल्ड HTML। तो सर ये जो प्लेटफॉर्म है, हमारे पास 5 प्लेटफॉर्म है, इनकी क्या अलग अलग एक एक स्टेज पे मतलब स्पेशलिटी होती है कि कोई किसी ने इसके ऊपर कर लिया परफेक्ट हो गया, कोई इसके ऊपर अलग अलग है क्या सर इनकी जॉब सारी? UI के डेवलपर अलग होते हैं, बैकएंड के डेवलपर अलग होते हैं। UI डेवलपर जो UI डेवलप करेंगे उनको बोलेंगे UI डेवलपर, एंगुलर डेवलपर, रिएक्ट डेवलपर, है ना, HTML CSS ये सब बनाते हैं, इनको बोलते हैं UI डेवलपर। एंड जो डेटाबेस के डेवलपमेंट करते हैं उनको बोलते हैं DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और जो जावा डेवलपर होते हैं वो इन 3 लेयर पे काम करते हैं, ये ऑल 3 लेयर पे काम करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा जावा डेवलपर, यहाँ पे आएगा UI डेवलपर,
यूआई डेवलपर। इधर आ जाएगा आपका बैकएंड में बोलूंगा इसको बैकएंड, या मैं बोल रहा हूँ इसको जावा डेवलपर। ओके, यहाँ पे आ जाता है आपका DBA, तो बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। सो जिसको तीनों चीजें आती हैं, ऑल थ्री आती हैं, यूआई पे उसको यूआई में भी मास्टर है, बैकएंड में भी मास्टर है, डेटाबेस में भी मास्टर है, उसको बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। आपको प्रोफाइल दिख जाएगी वहां पर, फुल स्टैक डेवलपर की प्रोफाइल दिख जाएगी। ओके, एंड जो नॉर्मल होगा बैकएंड डेवलपर, उसको बेसिक यूआई आनी चाहिए, बेसिक यूआई आनी चाहिए, बेसिक नॉर्मल क्वेरी लिख के डेटाबेस की आनी चाहिए, और वो मास्टर होगा किसमें, मास्टर तो मैं नहीं बोलूंगा, मतलब वो उसको नॉलेज होगी किसकी, कोर जावा एंड एडवांस जावा की प्लस फ्रेमवर्क्स की। ओके, सो अब टीम में कितने मेंबर्स काम करते हैं, उसमें यूआई डेवलपर्स होंगे आपकी टीम में, बैकएंड डेवलपर्स होंगे उसके अंदर, डीबीए होंगे उसके अंदर, प्लस क्यूए भी होते हैं, क्वालिटी टेस्टिंग जो करते हैं आपका, या आपके एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, क्यूए। तो कंबाइनिंग में कितने डेवलपर्स हो गए, यूआई, बैकएंड मतलब जावा, डीबीए, क्यूए, 4 डेवलपर्स कंबाइंड में काम करते हैं। जब आप कोई छोटी कंपनी ज्वाइन करते हो तो यूआई भी आप ही लिख रहे होते हो, बैकएंड भी आप ही लिख रहे हो, डेटाबेस भी आप ही डिजाइन कर रहे हो, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू टेक केयर, प्लस आप क्लाइंट से भी आप ही इंटरेक्शन कर रहे हो, तो जो बिजनेस के रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहे हो वो भी आप ही कर रहे हो, फोन भी आप ही हैंडल कर रहे हो, कॉल सेंटर भी आप ही बन जाते हो उसमें। ओके, बैक ऑफिस का भी आप ही काम कर रहे हो। तो जो छोटी कंपनी से जिसका करियर शुरू होता है उसको बहुत नॉलेज हो जाती है। बिग कंपनी में, बड़ी कंपनी में हो सकता है कि आप किसी होल एप्लीकेशन में छोटे से पार्ट यहाँ काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग हेयर, आपको पता भी नहीं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, एंड यू विल वर्क हेयर एंड यू विल लेफ्ट फ्रॉम हेयर। आप यहाँ कर रहे हो, फिर कहीं यहाँ पे आप काम कर रहे हो, फिर कहीं यहाँ पे कर रहे हो, आपको फुल पूरा नॉलेज होना, इट्स क्वाइट, आई मीन बिग बड़े ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो पाती है। सो जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन से काम शुरू करते हैं, छोटी कंपनी में वर्क बहुत होता है, तो स्टार्टिंग करियर में आपको वर्क नहीं, मतलब छोटी से अगर स्टार्ट होता है, मिड से होता है, तो दैट वुड बी द बेटर। आजकल बड़ी कंपनियों में भी माइक्रो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर बनने लगे हैं, तो वो भी मतलब ठीक है। ये दिस वाज द, आई मीन यू नो, ओल्ड टाइम पे हम लोग समझते थे ऐसे इसको। ठीक है सर, हाँ जी। जो सर यूआई डेवलपर है और डीबीए डेवलपर है, इनमें से मतलब किनका वर्क ज्यादा इजी होता है? इजी और डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, ये तो कुछ ऐसे ही है कि दो फैमिली मेंबर को पूछोगे कि यार मतलब है ना, उसको उसकी भी लाइफ इजी होगी और उसकी लाइफ प्रॉब्लम में भी होगी, राइट? तो ये डिपेंड करता है कि क्या है, मतलब है ना, तो सेम काइंड ऑफ ही रहता है, मतलब ऐसा नहीं इजी कुछ नहीं है। सी इजी और डिफिकल्ट क्या होता है, क्या बोलते हैं काजोल, चीजें आपको आती हैं तो आपके लिए क्या है, आसान है, डिफिकल्ट है, दैट्स इट। वो भी ऐसे ही सीखते हैं जैसे हम सीख रहे हैं अभी, वो भी ऐसे ही स्टडी करते हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं अभी, राइट? तो जो जितना प्रॉब्लम फेस करेगा, जितना ज्यादा उसको एरर्स आएगी, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी, मतलब उसको उतनी ज्यादा नॉलेज होगी। ओके, तो इजी डिफिकल्ट मुझे नहीं लगता इसमें कि ये आपका इजी है, ये इंटरेस्ट का पता लगता है कि जब अभी हम डेटाबेस को भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेटाबेस की करेंगे कि इसमें क्वेरी कैसे बनाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, डीबी कैसे बनाते हैं, डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं, सिलेक्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम इसकी करने वाले हैं। ऐसे ही हम लोग यूआई में एचटीएमएल में फॉर्म कैसे बनाएंगे, बहुत सारी चीज यूआई की प्रैक्टिस करने वाले हैं, फिर हम बैकएंड की भी कर रहे हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है आपको इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है। अगर आपको डीबीए लग रहा है तो फॉर द टाइमिंग जावा की प्रोफाइल से आप ज्वाइन कर लो कंपनी, साथ में साइड वाइज आप डीबी पे काम करते रहो,
फिर आप जब अगला स्विच करोगे तो आप उस फील्ड में चले जाओ जो आपका इंटरेस्टिंग है। यूआई इंटरेस्टिंग है, यूआई में चले जाओ। बैकएंड इंटरेस्टिंग है, बैकएंड में चले जाओ। डीबी आपका इंटरेस्टिंग है तो डीबी वाली प्रोफाइल में चले जाओ। सब में इंटरेस्ट हो तो फुल स्टैक डेवलपर बन जाओ, राइट। सर इनमें से सॉरी सर, इन तीनों में से मतलब टाइम सेव किस में होता है ज्यादा? टाइम से अब ये तो देखो, मैं तो जावा का बता सकता हूँ आपको, राइट। हम्म। जावा में सीखने के लिए बहुत है, मतलब काफी कुछ चीजें होती है। ओके, तो जावा का आई कैन टेल यू इट टेक्स, आई मीन यू नो, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने सारे मंथ स्पेंड कर चुके हैं जिसमें कोर कंप्लीट किया हमने। अभी एडवांस पे हम लोग आ रहे हैं। एडवांस के बाद हम लोग फ्रेमवर्क पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग स्प्रिंग एमबीसी की बात करेंगे, स्प्रिंग बूट की बात करेंगे, माइक्रो सर्विस की बात करेंगे, और इसकी जगह पे जेडीबीसी की जगह पे हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइबरनेट पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे फ्रेमवर्क की बात करेंगे। ओके, सो जावा आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, ओपन सोर्स है। सबसे ज़्यादा जो दुनिया में डेवलपर्स मिलेंगे वो जावा के ही हैं। तो आई मीन यू नो स्कोप ऑफ जॉब इज ऑल्सो, बट यूआई के भी बहुत डेवलपर मिलेंगे। यूआई के अलग फ्रेमवर्क हैं। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। जैसे मैंने सपोज अभी कंपनी में ज्वाइन किया स्टार्टिंग में, ठीक है, तो उसमें वर्किंग होता है 8 से 9 घंटे होता है। तो सपोज कि इसमें से यूआई डेवलपर को जैसे उसने 4 घंटे काम कर लिया, 4 घंटे उसे मतलब ऐसा होता है कि टाइम सेव कर सकता है। तो इनमें से किस पोस्ट में है ज्यादा, मैं ये कह रहा हूँ, किस डेवलपर को वो टाइम ज्यादा सेव मिल जाता है 1-2 साल बाद या 3 साल बाद? इक्वली बराबर ही है कि अगर आपको जावा में आता है और आप अगर इसमें 3-4 आवर्स अगर इसमें काम कर लेते हो, मतलब स्टार्टिंग में तो आपको इसमें भी पूरा टाइम देना होगा, स्टार्टिंग में इसमें भी पूरा देना होगा, इसमें भी पूरा देना होगा, राइट। आप करेक्ट सर। आप बाइक चला लेते हो, कार चला लेते हो आप? नहीं सर। बाइक चला लेते हो आप? स्कूटी सर। स्कूटी चला लेते हो, राइट। तो जब स्टार्टिंग में आपने की होगी तो आपको आगे भी ध्यान देना है, गियर भी देना है, वो भी देखना है, रेस कितना देना, सब चीजें आपको ध्यान रखना होगा, राइट। वो इट टेक्स टाइम। उसके बाद क्या होता है, जब 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल हो गए, उसके बाद क्या होता है, पता ही नहीं लग रहा होता है कि कब आपका स्कूटी चल रही है, राइट। सब कॉन्शियस जोन में ही चल रही है। आपको अलर्टनेस होगी जब कोई बीच में गड्ढा आ जाए या ब्रेकर